We are discussing something called as deductions in my last lecture. We had a combined session, the earlier sections, where we talked about something called as deductions. We had a session where we talked about something called as income from other source. We talked about deductions. One of the deductions we talked about was regarding ATC. Section ATC was very clear. It said that any amount that is invested in specific investments is allowed as a deduction under section ATC. What are the amounts that is allowed? What all amount is allowed as deduction under ATC? Sir, if you donate, so if you contribute any amount towards life insurance premium of USL or any of the family members, ATC में deduction मिलेगा. What are deductions? For those who are not in the last session, the deductions are nothing but the concessions given while computing the overall income called as the gross total income. टोटल इनकम में से कुछ अमाउंट हम माइनस करते हैं ताकि उतना हमारा इनकम कम हो जाए और हमको उतना हमको टैक्स कम लगे. Those are called as deductions. Under ATC we talked about deductions. The first one was contribution to any ULIP. ULIP stands for Unit Linked Insurance Plan. Any contribution or any premium paid for a life insurance policy of whom? On the life of individual himself, spouse or any child. इसका आपको डिडक्शन मिलेगा ATC में. ATC का डिडक्शन is available up to rupees 1,50,000 only, and it is available only to individuals and HUF. ये डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और HUF को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा. कॉमन सेंस है सर, हस्बैंड वाइफ किड्स ये सिर्फ HUF में या इंडिविजुअल वाले केस में ही होता है. कंपनी का कोई हस्बैंड या वाइफ नहीं होता, कंपनी का बच्चा नहीं होता, तो उसको ATC का डिडक्शन नहीं मिलेगा. सिंपल सा लॉजिक है. नेक्स्ट थिंग, व्हाट एल्स? इफ आई कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, आपको ATC में डिडक्शन मिलेगा. आपको ATC में डिडक्शन मिलेगा. Any premium paid for deferred annuity, any contribution to SPF. SPF is statutory provident fund. PPF is public provident fund. RPF is recognized provident fund. सर इनमें से किसी भी फंड में अगर आपने पैसा कंट्रीब्यूट किया, पे किया, डिपॉजिट किया, आपको ATC में डिडक्शन मिलेगा. आपके सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट होता है as contribution towards securing deferred annuity. This is basically a pension plan. Any amount contributed for a pension plan called as a deferred annuity. Common language में उसको pension plan बोलेंगे. So any premium paid for a deferred, what is the deferred annuity? What's the deferred annuity? I take out a life insurance policy. I keep on paying the premium till the age of 60, and after the age of 60, I receive every month rupees 20,000 from the insurance company. That money received after the maturity of the policy, not in one go,
but every month 20,000. That 20,000 is called as the annuity amount. The fixed amount of money received in the future at a fixed interval of time is called as a deferred annuity. Deferred matlab delayed, postponed. You are paying the premium now, but you will receive the money in the future. तो उसके लिए जब प्रीमियम आप आज पे करो तो इसका एटीसी में आपको रिडक्शन मिलेगा. Any amount contribute towards any of the provident fund, ऐसे याद रखो, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अलावा और किसी भी पीएफ अकाउंट में अगर आपने पैसा जमा किया, पीपीएफ, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग विल डिपॉजिट द मनी इन द पीपीएफ अकाउंट. Salaried class will deposit in the statutory provident fund account, or they might deposit in the recognized provident fund account. In all those cases, money shall be allowed as a deduction under section 80C. Sir, maximum deduction कितना मिलेगा? 1,50,000 or actual amount contributed, whichever is less. Whichever is less. So once we are done with all the heads of income, okay, ये रहा सर मेरा income from salary, तो मेरा income from house property भी है, तो मेरा income from other source भी है, IOS. तो तीनों का टोटल करेगा तो मुझे मिलेगा मेरा gross total income called as GTI. Called as GTI. सर इस GTI में से कुछ चीजें आपकी लेस हो जाती है, आपको कुछ कंसेशन मिलता है इनकम में, मतलब आपका उतना इनकम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसे कहा जाता है डिडक्शन. तो एटीसी में अगर मैंने एटीसी में अगर मैंने if I donate, if I contribute any money towards LIC premium, life insurance premium, if I contribute any amount towards provident fund which is not unrecognized, public provident fund चलेगा, PPF, statutory provident fund चलेगा, SPF, recognized provident fund भी चलेगा, RPF. आपने किसी डिफर्ड एन्युटी के लिए कोई प्रीमियम पे किया, एटीसी में रिडक्शन मिलेगा. आपने इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया, एटीसी में रिडक्शन मिलेगा. What else? What else? और क्या रिडक्शन मिलता है? Any sum paid or deposited in सुकन्या समृद्धि अकाउंट. भाई और बहनों, सुकन्या समृद्धि अकाउंट is a post office saving scheme where as a parent or as a legal guardian I can deposit certain amount in my daughter's SSA Sukanya Samruddhi account. This account can be opened for any girl child below the age of 10. This amount can be withdrawn any time after the attaining the age of 18. तो SSA अकाउंट में पैसा जमा किया SSC ने, SSC as a girl child, money is deposited in the SSA account of the girl child. सर अकाउंट बेटी के नाम से निकलेगा. I have a daughter काव्या जिसके नाम से पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन किया गया है. And I deposit some money every month, 1,000, 2,000, something or something. I keep on depositing. Because that much amount I have deposited, I will get concession in my overall income called as deduction under section 80C. So 80C is very clear. हम जहाँ पे बोलते हैं वहाँ पे पैसा लगाओ और इनकम टैक्स में डिस्काउंट पाओ. Use the money, spend the money where we are telling you, and you will get a deduction under 80C. Any amount contributed towards subscription to NSC 8. NSC is National Savings Certificate. NSC का अलग अलग इश्यूज आता है. अभी 8th इशू चल रहा है लेटेस्ट, 8th इशू, 9th इशू, 10th इशू. इसमें अगर मैंने इसको बाय किया, इसको अगर बाय किया, नॉर्मली आपको मिलता है 5,000, 10,000, 15,000 या 1,000, 2,000 का ही मिलता है. इसका एक सर्टिफिकेट मिलता है. So you buy the NSC National Savings Certificate for minimum 1,000 rupees.
and you will get some on maturity of that saving certificate or that fixed deposit, you will get approximately double amount, approximately, not exactly double, after 6.5 years roughly. तो आपका पैसा उतने टाइम के लिए ब्लॉक हो जाता है, आप बीच में निकाल नहीं सकते. Imagine I am putting up the money in the national saving certificate in my name or my daughter's name or my wife's name, perfectly fine, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्या करना पड़ेगा? Sir, I can't withdraw that money till the time of maturity, and I can claim deduction under section 86. Any contribution towards the annuity plan, बच्चा deferred annuity पढ़ा था ना पहला, बस उसके जैसे ये LIC का annuity plan है. इसमें तुम्हारा जीवन अक्षय, जीवन धारा 1, जीवन धारा 2, 3, 4 ऐसे अलग अलग स्कीम्स है. अब सिर्फ इतना याद रखो, LIC का एन्युटी प्लान या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का एन्युटी प्लान में अगर आपने कुछ भी प्रीमियम पे किया, कुछ भी अमाउंट डिपॉजिट किया, एडीसी में डिडक्शन क्लेम कर सकते. लिस्ट बहुत बड़ा है. नोटिफाइड म्यूचुअल फंड्स, आई विल कॉल देम एज टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स, called as equity linked saving scheme. I'll call them as tax saving mutual funds. Called as equity linked saving scheme, ELSS. Any money contributed or subscribed towards a equity linked saving scheme mutual fund called as tax saving mutual fund. तो इस म्यूचुअल फंड के कुछ स्कीम्स है नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट. उन स्कीम्स में अगर आपने पैसा डिपॉजिट किया तो एटीसी में डिडक्शन मिलेगा. एटीसी में डिडक्शन मिलेगा. इज दैट क्लियर? व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? लिस्ट बहुत बड़ा है सर, लिस्ट बहुत बड़ा है. Contribution towards National Housing Bank Term Deposit Scheme. सर NHB नेशनल हाउसिंग बैंक का टर्म डिपॉजिट स्कीम है. टर्म डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट. उसमें अगर आपने मिनिमम सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स है, उसमें आई थिंक 5 या 6 इयर्स है, उतने अमाउंट उसमें अगर आपने पैसा डिपॉजिट किया तो आपको एडीसी में उतना अमाउंट डिडक्शन में मिल जाएगा. सेम वे देयर इज ए कंपल्सरी टर्म डिपॉजिट स्कीम. Any amount deposited in this compulsory term deposit scheme, again आपको एडीसी में डिडक्शन मिलेगा. तो यहाँ पे लिखा है नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम. वेरी इंपॉर्टेंट. टेल दिस टू योर पेरेंट्स. टेल दिस टू योर पेरेंट्स. दे मस्ट बी नोइंग ऑलरेडी. भाई और बहनों, सर एनी पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस टू एनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विद इन इंडिया. अगर जो इंडिया के बाहर एजुकेशन के लिए फीस भरता है उसको टैक्स में कंसेशन का जरूरत ही नहीं है. उसको क्या जरूरत है टैक्स में कंसेशन का? दे आर कैपेबल ऑफ पेइंग दैट मच अमाउंट आउटसाइड इंडिया. इंडिया के अंदर आप किसी भी फुल टाइम एजुकेशन के लिए, आपके बच्चों के लिए आप ट्यूशन फीस पे करते हो. ट्यूशन फीस, डोनेशन नहीं. सर हमने फीस पे किया 1.5 लाख रुपया. सर 1.5 लाख में से डोनेशन था 20,000 रुपीज. डेवलपमेंट फीस के नाम पे 20,000 रुपीज लिया, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा. सर हमने 2,000 रुपीज लाइब्रेरी फंड में डोनेट किया या फीस के नाम पे हमसे लाइब्रेरी फंड का 2,000 रुपीज लिया, उसका भी डिडक्शन. सर आपने 1.5 लाख फीस भरा, उसमें से ट्यूशन फीस कितना लिखा है देखो, आपके रिसिप्ट में ट्यूशन फीस कितना लिखा है? सर 92,000 लिखा हुआ है. दैट 92,000 यू कैन क्लेम अंडर सेक्शन 86 एज ए डिडक्शन. आप उसका डिडक्शन एटीसी में क्लेम कर सकते हो, प्रोवाइडेड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मस्ट बी इन इंडिया, दैट टू ओनली फॉर फुल टाइम एजुकेशन. यहाँ पे क्लियरली लिखा है बच्चा, नीचे देखो यहाँ पे, any payment towards development fees or donation or payment of similar nature and payment made for education to any institution situated outside India, डिडक्शन मिलेगा नहीं.
इंडिया में फुल टाइम एजुकेशन के लिए मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ भी ट्यूशन फीस पे किया, एटीसी में क्लेम कर सकता है, मैक्सिमम 2 चाइल्ड का क्लेम कर सकता है. So why 2 childs? Why 2 childs? Why not more than 2 childs? To avoid population growth. Simple sa logic. We are already overpopulated. और मालूम पड़ा डिडक्शन मिल रहा है, लो बच्चा पैसा करो, ट्यूशन फीस भर दे जाओ, डिडक्शन क्लेम करो. Indian ICC can do anything. You never know. Rules are very clear. तो अब तक क्या पढ़ा हमने सर? अब तक हमने पढ़ा एटीसी में अगर हमने कुछ स्पेसिफिक जगह पे इन्वेस्ट किया पैसा, ओके, एलआईसी का प्रीमियम पे किया, खुद का पे किया, वाइफ का पे किया, बच्चों का पे किया, डिडक्शन. दूसरा सर पेंशन प्लान में कंट्रीब्यूट किया, एन्युटी प्लान में कंट्रीब्यूट किया, सर ट्यूशन फीस पे किया, पीपीएफ, एसपीएफ, आरपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट किया, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में पैसा कंट्रीब्यूट किया, नेशनल हाउसिंग बैंक का टर्म डिपॉजिट में पैसा डिपॉजिट किया, कंपल्सरी टर्म डिपॉजिट प्लान में पैसा जमा किया. याद रखो, याद रखो सर. एनएचबी, एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल हाउसिंग बैंक का फिक्स डिपॉजिट, कंपल्सरी टर्म डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस का टर्म डिपॉजिट स्कीम 5 साल के लिए पैसा लॉक हो जाता है, नेशनल सेविंग स्कीम, यूनिट लिंक प्लान, एन्युटी प्लान, पेंशन प्लान, contribution to any of the PPF account, ULIP, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, एलआईसी हो या कोई और कंपनी हो, सब डिडक्शन मिलेगा 80 में. क्लियर है? क्लियर है? रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन इंक्लूडिंग स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस एंड अदर एक्सपेंसेस. भाई और बहनों, भाइयों और बहनों, करंट ईयर में मैंने नया हाउस प्रॉपर्टी बाय किया. सर करंट ईयर में मैंने नया हाउस प्रॉपर्टी बाय किया, तो उस हाउस प्रॉपर्टी को बाय करते टाइम पे मैंने 2,34,000 स्टैंप ड्यूटी पे किया, रजिस्ट्रेशन फीस पे किया, डिडक्शन एटीसी में मिलेगा. सर मैंने होम लोन रीपे किया, so when I repay the home loan there are two parts. When I repay the home loan there are 2 aspects. One is the principal amount, one is the interest. Sir interest on home loan section 24A, 24B इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा. सर इंटरेस्ट वाला पोर्शन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट रीपे किया लोन का वो कहां पर आएगा? एटीसी में आएगा. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल? ओके, यहाँ पे लिखा देखो, एनी रीपेमेंट ऑफ अमाउंट बाय द एसएससी. यहाँ ये देखो, सब्सक्रिप्शन टू सर्टेन म्यूचुअल फंड्स कॉल्ड एज टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम वाला म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट इन ए 5-year टर्म डिपॉजिट विद ए शेड्यूल्ड बैंक फॉर नॉट लेस देन 5 years, एटीसी में डिडक्शन क्लेम कर सकता है. एंड द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हाउ मच? यू कैन क्लेम मैक्सिमम हाउ मच डिडक्शन? 1,50,000. इज दैट क्लियर? तो सर एटीसी में कहां कहां पैसा लगा सकता हूं? सर कंपल्सरी टर्म डिपॉजिट कम से कम कितने के लिए करना पड़ेगा? कहां पे? शेड्यूल बैंक. ओके, म्यूचुअल फंड में मिनिमम 3 years, दैट इज कॉल्ड एज द लॉक इन पीरियड. उतने टाइम के लिए पैसा ब्लॉक हो जाता है, आप निकाल नहीं सकते. निकाला तो जो टैक्स का बेनिफिट मिला था वो माइनस हो जाएगा, इतना टैक्स कट के आपको नुकसान होगा. ट्यूशन फीस ऑफ द चिल्ड्रन, मैक्सिमम हाउ मेनी चिल्ड्रन? Only tuition fees wala portion, that too for maximum 2 children for education in any institution in India. सर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी का इंडिया में अगर मान लो जैसे इंटरनेशनल स्कूल,
ओके, जैसे इंटरनेशनल स्कूल ऑपरेटिंग इन इंडिया, उसको अगर ट्यूशन फीस पे किया तो डिडक्शन मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा। तो इंडिया में पे किया ना आपने, आपने इंडिया में पे किया ना। हमने ऐसा नहीं बोला कि आप फॉरेन स्कूल्स में नहीं पढ़ सकते हो, आप फॉरेन स्कूल्स में पढ़ो, पर उसका इंडियन ब्रांच में, इंडिया में अगर होगा ब्रांच तो वहां पे पढ़ो, हम आपको डिडक्शन देंगे। इंडिया के बाहर देखो पैसा कहां पे जा रहा है? अगर इफ यू आर पेइंग ट्यूशन फीस आउटसाइड इंडिया, पैसा इंडिया के बाहर जा रहा है। अरे तुम इंडिया में पैसा कमा के इंडिया के बाहर फीस भर रहा है, हम तुमको डिडक्शन क्यों दें? सिंपल से लॉजिक है। आते यहाँ का हो, भरते बाहर हो, बाय बाय वाह। अगेन दिस इज वन वे टू अवॉइड द ब्रेन ड्रेन। इंडियन गवर्नमेंट डजंट वांट दैट पीपल ऑफ इंडिया शुड गो अब्रॉड, यू शुड स्टे हियर। जहां पर पढ़ेगा इंडिया के बाहर जाएगा, वहां पर पैसा कमाएगा, वहां पर ही रहेगा। हमने पाल पोस के तुमको नरिश किया इंडिया में, हमने आपको पॉलिश किया इंडिया में, और तुम काम इंडिया के बाहर किसी और कंट्री के लिए कर रहे हो तो आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक। LIC का प्रीमियम रिडक्शन मिलेगा, ट्यूशन फीस ऑफ द चिल्ड्रन रिडक्शन मिलेगा, म्यूचुअल फंड का टैक्स सेविंग स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया रिडक्शन मिलेगा, सब्सक्रिप्शन टू यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान का यूनिट्स रिडक्शन मिलेगा, पेंशन प्लान एन्युटी प्लान में पैसा इन्वेस्ट किया, प्रीमियम पे किया, रिडक्शन मिलेगा। ध्यान में रखो क्या क्या पॉइंट मैंने बताया। आर यू गेटिंग मी? मैक्सिमम रिडक्शन कितना मिलेगा बच्चा? सर मैक्सिमम रिडक्शन मिलेगा 1,50,000 ऑन द एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज लेस। एटीसी हो गया। अभी ऑडिट सेक्शन का बात करते हैं। 80CCC सम्स आएगा तो बहुत कुछ क्लियर होगा। So people who have come for marks today, I am extremely sorry. You can ask me later on WhatsApp. I will tell you the marks. I know the good number of there in the classroom right now. Only it came only for the marks. Section में नहीं रहेगा, किसी में marks announce करेगा. Ping me in person. I will tell you the marks. Don't worry. I don't know disappoint anyone here. Okay. 80CCC का बात करते हैं सर। सर कुछ स्पेसिफिक पेंशन फंड्स है, कुछ स्पेसिफिक पेंशन फंड्स है सर, उसमें अगर डोनेशन देगा ना तो मैक्सिमम एटीसी में डिडक्शन मिलेगा कितना? 1.5 लाख। कितना मिलेगा? एटीसी में नहीं, 80CCC में मिलेगा। कहां पर मिलेगा सर? 80। सर मतलब ऐसा है, एटीसी में पैसा डोनेट, एटीसी में पैसा खर्चा किया, एटीसी के अंदर आता है तो कितना मिलेगा? 1.5 लाख। सर 80CCC में किया तो कितना मिलेगा? 1.5 लाख। इनकम टैक्स बहुत होशियार है, वो बोलता है तुम एटीसी में 1.5 लाख लो, मैक्सिमम एटीसी में कितना ले सकते हो? 1.5 लाख। 80CCC में कितना ले सकते हो? 1.5 लाख। सर और एक सेक्शन है 80CCD, इसमें भी आप कितना क्लेम कर सकते हो? 1,50,000। सर आप तीनों सेक्शन में 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 डिडक्शन ले सकते हो, उतना आपका इनकम क्या हो जाएगा? 4.5 लाख रुपए। नहीं ऐसा नहीं है। इनका कहना है कि भाई एटीसी में तुम लो ना 1.5 लाख, ट्रिपल सी में भी 1.5 लाख लो, सीसीडी में भी 1.5 लाख लो, तीनों का मिला के ओवरऑल 1,50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। एक मिनट, समझ में नहीं आ रहा सर। एटीसी में मान लो मैंने पीएफ में कंट्रीब्यूट किया साल का 24,000, तो कितना मिलेगा मुझे? 24 नहीं तो 1,50,000, विच इज लेस। हमेशा विच एवर इज लेस ही लेने का। कितना मिलेगा डिडक्शन? सर मैंने 80CCC में पेंशन फंड में डोनेट किया 65,000, तो 65 और 1,50,000 विच इज लेस में कितना मिलेगा? और सीसीडी में कुछ भी डोनेट नहीं किया, तो टोटल कितना हुआ सर मेरा? इज इट मोर देन 1,50,000? आई कैन क्लेम होल ऑफ 189,000। तो अगर मैंने यहाँ पे 1,24,000 का डिडक्शन क्लेम किया कि मैंने वहां पे खर्चा किया है, 1,24,000 मिलेगा क्या? हाँ सर, 124 और 1,50,000 विच इज लेस 124 पूरा मिलेगा, तो 124 पूरा मिलेगा। 65 और 1,50,000 65 पूरा मिलेगा। तो दोनों का मिला कितना होता है? तो दोनों मिला के होता है 1,89,000।
क्या 1,80,000 मिलेगा मुझे? नहीं, मैक्सिमम कितना मिलेगा? 1,50,000 का ही डिडक्शन मिलेगा। ओवरऑल डिडक्शन कम, इंडिविजुअल डिडक्शन 1.5 लाख तक ले सकता है, कंबाइन तीनों को मिला के भी 1.5 लाख ही ले सकता है, 4.5 लाख नहीं मिलेगा। कंबाइन तीनों को मिला के भी कितना मिलेगा? 1,50,000 ही मिलेगा। दैट्स इट, दैट वाज एडीसी। देखो यहाँ पे लिखा है क्लियर, पॉइंट में नोट इन मिलॉर्ड, maximum reduction permissible is 1,50,000. Further, overall limit of 1,50,000 will continue to be applicable. That is maximum permissible reduction under ADC, ACCC and CCD will be how much? सर अगर मान लो मैंने कंपल्सरी टर्म डिपॉजिट में 2 लाख रुपए जमा कर दिया, तो कंपल्सरी टर्म डिपॉजिट कहां पर आता है? सीसीसी में आता है क्या एटीसी में आता है? तो एटीसी में आता है। कितना जमा किया मैंने पैसा, कितना क्लेम कर सकता मैक्सिमम? 1,50,000। चलो 1,50,000 क्लेम कर लिया, ये साल मैंने 1,50,000 का रिडक्शन क्लेम किया। अगर आपको पता है कंपल्सरी टर्म डिपॉजिट किसको बोलेगा अपन? सर ऐसा डिपॉजिट जो आप मिनिमम कितने साल के लिए रखेगा? 5 साल या उससे ज्यादा टाइम के लिए डिपॉजिट रखेगा तो क्या होगा? वो क्या कहलाएगा? सीटीडी, कंपल्सरी टर्म डिपॉजिट कहलाएगा। तो ये साल मैंने 2 लाख रुपए जमा किया और 2 लाख रुपए जमा करने की वजह से मुझे कितने का रिडक्शन मिला है? 1.5 लाख का। मैं भी होशियार हूँ, एसएससी बहुत होशियार है, वो बोलता है मैंने एफडी में तो पैसा डाल दिया 5 साल के लिए और 1.5 लाख का रिडक्शन क्लेम कर लिया, उतना मेरा टैक्स बच गया। अगर मैं हायर टैक्स ब्रैकेट में आता हूँ 30%, तो 1.5 लाख में 30%, मेरा साल का 45,000 रुपया टैक्स कम हो गया। मेरा साल का 45,000 रुपया टैक्स क्या हो गया? बच गया। I saved 45,000 in tax. I saved 45,000 in tax. एसएससी क्या करता है? ये साल एफडी में पैसा डालता है, टैक्स बचा लेता है, 2 साल का तो पैसा विड्रॉ करता है। तो विड्रॉ तो कर नहीं सकते, टेक्निकली आप विड्रॉ नहीं कर सकते। कितने साल के लिए? क्योंकि आपने कंपल्सरी टर्म डिपॉझिट में पैसा जमा किया। अगर तुमने बोला नहीं मला पैसे पाहिजे, पाहिजे म्हणजे पाहिजे, ले लो, तुम्हारा पैसा है, ले लो, हमको क्या? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा पहला तुमने ये जो 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन लिया था उसकी वजह तुम्हारा टैक्स कितना बचा था? जब आपने ये पैसा जमा किया था तब आपको हमने टैक्स में कितने का बेनिफिट दिया? 45,000 आपका बच गया। तो आपको ये पैसा 5 साल के लिए रखना चाहिए था, आपने 5 साल नहीं रख के पहले ये पैसा निकाल लिया। तो अभी आप क्या करो, वो जो हमने आपको कंसेशन दिया था इनकम टैक्स में 1,50,000 का, वो रिवर्स होगा। जब डिडक्शन लिया था क्या किया था? माइनस। जिस साल पैसा निकाल लेगा 5 साल के पहले, उस साल वो 1.5 लाख क्या हो जाएगा? तुम्हारे इनकम में वापस से एड बैक हो जाएगा और उसके ऊपर मुझे क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। So you can withdraw your amount, no doubt about that, but then tax deduct होके पैसा मिलेगा, टैक्स कट के पैसा मिलेगा। 2 लाख नहीं मिलेगा, 2 लाख में से 45,000 माइनस हो गया, बाकी का अमाउंट मिलेगा। ये मोटा मोटा बोल रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रहा हूँ। आर यू गेटिंग मी? सिंपल वर्ड्स में पैसा जमा किया, एटीसी में क्लेम किया डिडक्शन, बाद में पैसा निकालने गया तो फिर टैक्स भरना पड़ेगा। एकदम सिंपल है, वही लिखा है नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट में वही लिखा हुआ है डीम्ड इनकम में। और आ गया एटीसीसीडी। सर एटीसी था पहला एटीसी था, फिर हमने एटी ट्रिपल सी देख लिया, अभी एटीसीसीडी क्या है सर? तो सीसीडी भी एक पेंशन प्लान वाला ही कंसेप्ट है, ये पेंशन स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट है। देखो शॉर्ट में याद रखो, पेंशन स्कीम ऑफ, सर इस पेंशन स्कीम में अगर आपने कुछ कंट्रीब्यूशन किया, कंट्रीब्यूशन मेड टू द पेंशन स्कीम नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कहां पे डिडक्शन मिलेगा? एटीसीसी डी में मिलेगा। अगेन तीनों का मिला के मैक्सिमम 1.5 लाख के ऊपर नहीं जा सकता, तीनों का मिला के मैक्सिमम 1.5 लाख के ऊपर नहीं जाएगा।
लास्ट है ATCCE। सर ATCCE कुछ अलग नहीं है। ATCCE क्या कहता है? ATCCE कहता है कि भाई आपने ATC में 1.5 लाख तक डिडक्शन लिया, ट्रिपल सी में डिडक्शन 1.5 लाख का लिया, CCD में 1.5 लाख का लिया, आप लो ना, हमको कोई एतराज नहीं है। आप मैक्सिमम ATC में you can claim deduction of, under ATC you can claim deduction of 1,50,000, ट्रिपल सी में 1,50,000, CCD में 1,50,000, बट तीनों का मिला के ओवरऑल, तीनों का मिला के जो टोटल आएगा डिडक्शन, वो ATCCE के हिसाब से 1.5 लाख के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 1.5 लाख के ऊपर नहीं जाना चाहिए। लास्ट पर मैं बता रहा हूं सर, अगर आपने न्यू पेंशन स्कीम करके, नया स्कीम है गवर्नमेंट का NPS, सर न्यू पेंशन स्कीम में अगर आपने पैसा कंट्रीब्यूट किया तो आपको एक्स्ट्रा 50,000 का रिडक्शन मिलता है। कितने का रिडक्शन मिलेगा? ये देखो यहां पर है, new pension scheme notified by the central government. This is in addition to 1,50,000 under ATCCE. तो सर मतलब इसका मतलब ऐसा है, सर मतलब इसका मतलब ऐसा है कि सर ATC में क्लेम करेगा 1.5 लाख, ट्रिपल सी में क्लेम करेगा 1.5 लाख, CCD में क्लेम करेगा मैक्सिमम 1.5 लाख। अब ये वाला अमाउंट मत ध्यान रखो, तो तीनों का मिला के टोटल, तीनों का मिला के एग्रीगेट, सीसी बोलते हैं तीनों का मिला के एग्रीगेट कितना मिलेगा? 1.5 लाख ही मिलेगा। और एडिशनल न्यू पेंशन स्कीम का 50,000 मिलेगा अंडर सेक्शन 80CC। ये हो गया हमारा पहला रिडक्शन, जिसमें हमने कितना सेक्शन डिस्कस किया? टोटल 4 सेक्शन, 4 नहीं 5, ओके 4 हो गए, सॉरी। सी, ट्रिपल सी, CCD, CCE एंड CCD का 2 है, CCD 1, CCD 2। Is that clear to all? Deductions are nothing but concessions in the overall income that will lower your overall income, and that thereby your tax liability will be reduced. Clear? That was all about deduction under section 80C, triple C, CCD 1, CCD 2 and CCE. Is that clear? Next lecture I'll talk about 80U, 80D, 80DD, 80DDD and 80E. ये एक ही पढ़ा था C वाला सेक्शन, बाकी सेक्शंस कंपैरेटिवली काफी इजी है, they're not that lengthy.